I want to know, not a bookish, but in your own language, in your own words, what will be the definition of a sequence? Sequence की definition क्या होती है? Sequence is a set of limited or unlimited numbers that have a क्या बोल सकते हैं, एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है उन दोनों सबके बीच में, उनके बीच में रिलेशंस रहते हैं. pattern between them. Common pattern. हाँ, ठीक है, मतलब there should be some pattern which can be observable. Series of ideas. It can be difficult to observe, है ना? But there should be a pattern. अच्छा, few of you are saying numbers का relation. Parth, it is not necessary to have numbers in a sequence, right? I mean, numbers ना होकर, it can be figures, it can be any object, any element. Objects, yes, objects in order. So when you say in order, that means there is a pattern. There is a set pattern. It is a set of objects which have a particular relation between themselves. So ये definitions आप लोगों को पता है. All right. So this is a sequence, right? Next slide. So what is a sequence and what is the difference between finite and infinite? This is our first objective. We want to know what is a sequence. And if you will open your textbook, there's nothing like that. But I want you to think about this part. I mean, the definition of sequence, the definition of series, for a reason. We have a very generic misconception. If you ask somebody who has never studied mathematics, logically वो वही बोलेगा जो तुम बोल रहे हो, right? That sequence is something, there is a set pattern, the pattern which is identifiable. Pattern का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे 4 terms दी गई, तो 5th term जो है वो मैं guess कर सकता हूँ. That's a sequence for us, right? So let's take an example. Press 3. Let's take an example like this, where I have 1, 2, 3, and 4. So do I have a sequence? First of all, tell me. Do you think I have a sequence? Because according to you, yes, sir. This is a sequence. Yes, sir. There should be a pattern, and the pattern, using that pattern, if you can guess the pattern, you can tell me the next term of the sequence. The sequence should not necessarily have numbers, right? No, it is not necessary, but this is one of the examples. It can be numbers, right? It can be. 5 next term होगा 5. Can or cannot. अच्छा ठीक है, रुको. 5 होगा next. मैं तुम्हें कुछ options देता हूँ. जैसे मान लो first option is 5. Next option is let's say pi. All of these. Next option is I. Imaginary ले लेते हैं. और D option is what? E to the I pi. E power I. Verify. चलो -1 तो जो बोलना चाह रहे थे. All right. So we have these 4 options. How many of you say A? A. So I captain. A sir. A. Okay, B. B वाले कितने हैं? B for बिशुदीप. बिशुदीप B बोल रहे हैं क्या? नहीं. सर मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है सर, क्योंकि सीक्वेंस में ऐसा कुछ लॉजिक. सर मैंने भी चैट में वही लिखा है, all of these. हाँ, लाइक सर सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, बट सीरीज जब आएगा तब मतलब एक लॉजिक चाहिए. नहीं. I mean, the first part is correct. When they say that it can be anything, I mean 90%, 99% of you may feel surprised कि ये लोग ये क्या कह रहे हैं कि next term कुछ भी हो सकती है. Because apparently it should be 5. 1, 2, 3, 4, 5. This is seemingly sequence of natural numbers. So if this is a sequence of natural numbers, the next number should be 5. 1, 2, 3, 4, and 5. But they are saying it can be anything. ऐसा कैसे हो? ऐसा कैसे मान लें? So whatever you're saying, there should be a mathematical support for each and every statement. That's why mathematics or logic, when somebody says that be logical. Sir, it can be A, B, and D, not C, I think. It cannot be C. It can be anything actually. Again, I'm telling you, it can be anything, and I will prove it to you. Don't worry. So, एक बहुत बड़ा misconcept हमारा दूर होने वाला है. When you feel like
कि एक सेट पैटर्न है, बहुत अच्छी बात है, सेट पैटर्न है. There is a rule which tells us what will be the fifth term, what will be the sixth term. There should be a certain rule. Those who are thinking about natural numbers, they are also thinking about a rule. You're not wrong. Let me tell you, those who are saying 5, I cannot say you're wrong. But if you say that pi cannot be an answer, then you are wrong. I mean, there are a lot of answers possible. Maybe all possibilities, जितनी भी possibilities तुम सोच सकते हो ना, सब कुछ यहाँ पे हो सकता है. Everything. Real numbers or imaginary numbers, out of which one answer is 5. So for example, if you want me to prove that the next number, I mean, the fifth term of the sequence will be pi, I can prove it to you. So let's see a rule. Tn or an, whatever you are comfortable with, because you have learned arithmetic progression already, I need not tell you what this symbol represents. What is an? An means nth term. Nth Exactly. term. It is nth term. It is nth term of the sequence. अब nth term का मतलब क्या हुआ यार? Nth term का मतलब ये हुआ, obviously n is a natural number. So that means I'm talking about first term if I'm saying n equals to 1, t1 or a1, whatever. Second term means a2. Third term means a3. Fourth term means a4. So if I ask you in this symbolic representation, what will be a1 for this particular sequence? What is One. a1? That is the first term. It is 1. One first term. Yes. What is a2? It is 2. What is a3? It is 3. And so 3, Four. right? 4. Right. तो ये presentation सबको पता है ना? Now, if I say Tn is n, if I say Tn is n, this is my first guess, which is correct because T1 is 1, T2 second term is 2, T3 is 3, T4 is 4, and so on. So, according to this rule, the fifth term, if I put n equals to 5, the fifth term should be 5. है कि नहीं? सही बात है. Fifth term 5 होनी चाहिए. But अगर तुम्हें fifth term कुछ भी बनानी हो, तो मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाता हूँ देखना. Suppose मेरा जो रूल है वो ये कहता है that my an is let's say k times n minus 1, n minus 2, n minus 3 and n minus 4 plus n. अब मेरी बात ध्यान से समझना भी ना, ये जो मैंने लिखा है अभी ना, ये भी मैंने जनरल टर्म लिखी है. Those who are saying that this should be a sequence of natural numbers and the next number should be 5, you are setting this rule. You are imagining a general term like n, where n represents natural numbers. T1 is 1, T2 is 2, T3 is 3, and so on. But I am saying that for me, the logic is that nth term is this. Is this nth term correct? आओ उसको verify करते हैं. What if you substitute n equals to 1? देखो ये satisfy हो रहा है. 1. If I will sir. put n equals to 1, look this term मैंने बहुत ही smartly ये term बनाई है. If you look at all these factors, वो zero n हो minus जाता 1 is है. there. वो एक वो तो zero zero हो हो जाएगा जाएगा, फिर सारे फिर zero become तो zero. n1 है तो 1 आ जाएगा. Correct. जब तुम 2 रखोगे 24 plus तो भी 5. 0. जब तुम 3 रखोगे तो भी है 0. जब तुम 4 रखोगे तो भी है 0. तो eventually तुम्हें n ही मिलने वाला है. But the moment you will say, okay, now I am putting n equals to 5. What about a5? Tell me. अगर मैं यहाँ पर 24 plus 5. हाँ, अगर मैं यहाँ पर n को 5 रखता हूँ, look, 4, 29. 3, 2, 1. This is 24k. 24k plus 5. Plus 5. And since there is k, और ये k तो हमारा है, k को हम जो चाहे रख सकते हैं. तो इसीलिए मैंने कहा कि अब तुम्हें जो भी टर्म यहां पर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल those who want pi to be there, you can have pi. Let's meet pi. Pi minus You set the value of k as what? What will be the value of k? In this case, it will be pi minus 5 divided by. minus 0.0774. अरे कैलकुलेटर विंडो याद है ना. हाँ,
pi minus 5 divided by 24. 24. When you will substitute this value of k here in your general term, in your nth term, you will get fifth term as pi, where the sequence of the terms will never change, because you know, when you will put n equals to 1, 2, 3 or 4, it will remain same. For n equal to 1, the first term is 1, second term is 2, third term is 3, fourth term is 4, but fifth term now becomes pi. Those who want I as the next term, pi की जगह पे I रख लेना, जो भी k की वैल्यू आती है सब्स्टिट्यूट करो. So I think you must have liked this. तुम्हें समझ में आया होगा कि अपने मन से जिम किया, इसको कोई सीक्वेंस आपने कोई अर्थमेटिक या ऐसा कुछ नहीं बना, लाइक अपने मन से आपने कुछ भी सीक्वेंस बनाया. एग्जैक्टली मैंने कब कहा कि ये एपी है या जीपी, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस ये कहा कि एक सीक्वेंस है, राइट? So the definition of sequence, look, there is a difference between mathematics and logic as well. I mean, mathematics is always logical, but logic is not always mathematics. So what I mean to say that our logic says that this should be a natural number. तो जो भी वो मैथ के एग्जाम होते हैं ना, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट हो, ये सब जो भी इतना के एनटीएससी में पूछे जाते हैं, जो भी एग्जाम्स होते हैं, सीसैट, तुम ग्रेजुएशन के बाद जब तुम प्रिपरेशन करोगे सीसैट की, उस वहां भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेक्स्ट टर्म बताओ. Mathematically, this question is wrong, because whatever option you will give me, I can prove mathematically that next term is going to be this. This is my logic, and there is a logic which says yes, pi can be correct, -1 can be correct. So the definition of sequence mathematically cannot be that there is a single pattern, right, which will allow us to guess the next thing. No, a sequence, the definition of sequence cannot be this. So what could be the definition of sequence? Before I get to this, tell me, did you understand what I'm trying to say? मैं क्या explain करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है? Yes, sir, समझ में आ रहा है. Right? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे 5 एक जो है hard and fast rule है कि बस हमको 5 ही रखना है. I can put anything here, but still it is a sequence. So there should be a definition, because there is a sequence and there is something which is not a sequence. How will you differentiate between them? You cannot say that sequence will have a pattern and something which is not a sequence will never have a pattern. No, I cannot say that. But there is something fixed. There is something fixed about a sequence. What could be this? So change your definition of sequence now. Be a bit mathematical. You are logical already. Now change your definition to a mathematical. Follow some mathematical definitions. It should be provided so that we can calculate the next term. Why not? I mean, there is always a set rule, correct? There is always a rule, there is always a logic, and it can be anything. Okay, all right. So there is one thing which is not changing. I think constant value. पहुंचे नहीं है. वो क्या चीज है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ. Press 3. Press 3. Now look at this. This is the definition. This is the definition of a sequence. Read it and try to understand. It is a function. When I say mathematically, what is a sequence? So it is a function. What is a function? You provide a function input, it gives you output. It is a function whose domain is a set of consecutive integers. Now, when I say sequence is a function, उसका जो domain means what? Input जो है, वो set of consecutive integers है. तो मेरे ख्याल से ये guess करना मुश्किल नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ इसकी. देखो A1, A2. मैं क्या कर रहा था? मैं यहाँ पे जो जनरल टर्म थी, वहां पर मैं n की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहा था, राइट? सो व्हेन यू पुट n इक्वल्स टू 1, you get the first term a1, whatever it is, depends on the sequence you're looking at. If it is a sequence of natural numbers, a1 is 1. If it is a sequence of let's say even integers, the first term is 2, and so on. So it is a function whose domain is a set of consecutive integers, mostly natural numbers, list of ordered numbers. So I have said numbers here in the slide because obviously we are looking at mathematical sequences. Otherwise, it can be any of the elements, objects, कुछ भी हो सकता है. Separated by commas. Each number in the list is called a term. ये तुमको पता ही है. And each number in the list is nothing but the output of the function. So, for example, if you see the sequence 2, 4, 6, 8, 10, right? 2, 4, 6, 8, 10. Had it been 2, 4, 8, 6, 10, had it been 2, 4, 10, 8, 6, कुछ भी हो सकता था, right?
अगर तुम देखो तो यहाँ पर जो आउटपुट है, आई मीन सीक्वेंस में जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये तो कुछ भी हो सकते हैं. इट कैन बी इवन नंबर्स, इट कैन बी ऑड नंबर्स, इट कैन बी एपी, जीपी, कुछ भी हो सकती है. बट समथिंग इज फिक्स्ड, स्टैटिक, दैट इज नॉट चेंजिंग. व्हाट इज दैट? That is the position of the term, right? So when I see 2 at the first position, I will say the first term of the sequence is 2. The second term of the sequence is 4. The third term of the sequence is 6. So try to understand what is the definition of sequence. The definition of sequence says that it is a function whose input is always a natural number. Whose input is always a natural number. Output can be any number. Output कुछ भी हो सकता है. अब वो पैटर्न आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट टर्म बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, वो बात की बात है. लेकिन यहां पर एक चीज फिक्स्ड है और वो है टर्म का नंबर. देयर विल बी अ फर्स्ट टर्म, देयर विल बी अ सेकंड टर्म, देयर विल बी अ थर्ड टर्म एंड सो. फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखो, प्रेस 3. सपोज कल को ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है, और मैंने कहा कि वो बच्चे जो दोज हु आर बोर्न बिफोर, I don't know what, I cannot guess, it was 2000, before 2003, ठीक है, they will sit in the first 5 rows and बाकी लोग पीछे बैठे. So what I am trying to do, or maybe in the order of your height, तुम लोग जो है first second से बैठना शुरू करो. So I don't know what the output of the sequence would be, because मैंने तो कोई तुम्हारी heights measurement तो किया नहीं, but मैंने तुम्हें एक rule दे दिया. Accordingly you will set yourself, right? सारे students बैठ जाएंगे. But I know one thing for sure, that the tallest kid will be sitting in the back, सबसे पीछे बैठा होगा, और जो छोटा बच्चा है वो देखो आगे बैठा होगा, है ना, first, second, third and fourth. So this is a sequence of students which I have generated. So one thing is not changing, and that is what? That is a positioning of the students of the objects. But the output can be anything. It depends on the rules. So did you understand? I mean, you need not to write also. Definition लिखने की कोई जरूरत नहीं है. बस हम अपने logical definition को mathematical definition में convert कर रहे हैं. So I hope you understood. हाँ, समझ में आ गया? Yes, sir. तो जरूरी नहीं, मैथमेटिकल भी जरूरी नहीं है, लाइक सीक्वेंस हमेशा मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूला रहेगा, वो एक स्टेटमेंट भी तो हो मैथमेटिक्स सकता है पढ़ रहे हैं वेदांत, तो हमारे सामने सारे सीक्वेंसेस ऑफ मैथमेटिकल ही आने वाले हैं, ठीक है. ना, एक्चुअल में स्टेटमेंट भी तो हो सकता है ना. हाँ, बिल्कुल हो सकता है. तो जिस डेफिनेशन में मैंने डोमेन की बात की थी, देखो, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ईच टर्म यूजुअली बिगिंस विद पोजीशन 1 ऑब्वियसली. अब कोई मान लो उसको रीडिफाइन करके पोजीशन 0 कर दे, पोजीशन -1 कर दे, डिपेंड्स कि कौन किसमें कंफर्टेबल है, बट यूजुअली इट स्टार्ट्स विद पोजीशन 1, है ना, पोजीशन 2, पोजीशन 3 एंड सो ऑन. और तुम्हें पता है कि रेंज फंक्शंस के लिए रेंज जो कीवर्ड यूज होता है वो उसके आउटपुट के लिए होता है. सो द एक्चुअल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन द प्रीवियस एग्जांपल वी हैड इवन नंबर्स. सो 2, 4, 6, 8, 10 जो है वो उसकी रेंज है, वो उसके आउटपुट्स है. And this is the example of a sequence. Right? Next slide. Right. अब sequence भी देखो, sequence में types तो बहुत सारे होंगे, अभी हम देखेंगे arithmetic, geometric, but एक basic difference अगर हम देखें तो कुछ sequence ऐसे होंगे जहां पर number of terms finite है. I mean, there will be an end to a sequence, there will be a last term, उसके बाद में आगे नहीं जाना है. फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि the set of natural numbers not exceeding 10, not greater than 10. तो you will say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You will stop at 10 exactly. तो ये एक finite sequence हो गया. और जब मैंने बोला कि ठीक है, the sequence of all even natural numbers, then you will say 2, 4, 6, 8, 10. Obviously you cannot list all the numbers. So this is an infinite sequence, right? So a sequence which has a last term or a final term, such as sequence 1, it is a finite sequence, and the sequence which continues without stopping is an infinite sequence. Again, need not to write. You knew, I think you knew this already, but मैं एक बार देख लेते हैं इसको भी, है ना? Finite or infinite sequence. Next. Okay. Now comes the crucial part, because in almost every sequence, series or progression, whatever you call it, all are synonyms of each other. अभी मैं बताता हूँ कि series कैसे different है sequence है. So the general term or nth term,
nth टर्म और जनरल टर्म के बारे में सबको पहले से ही आइडिया है। तो अगर तुमने वो एग्जाम्पल देखा होगा अभी फाइनाइट टर्म का या इनफाइनाइट सीक्वेंस का, सॉरी, तो तुमने देखा होगा कि दोनों ही सीक्वेंसेस की एक nth टर्म होगी, एक जनरल टर्म होगी, एक ऐसा रूल होगा जो हमको पैटर्न बता पाएगा। जैसे मैंने कहा कि हाँ भाई मेरे पास इवन नेचुरल नंबर्स हैं, तो मुझे पता है कि उसकी जनरल टर्म में लिखूंगा 2n, where n is the term number, or I can say n is a natural number. So when I will put n equals to 1, I will get first term a1 as 2, right? But for an infinite sequence also, चाहे वो finite sequence हो, चाहे वो infinite sequence हो, the rule is not changing because I have the same output, right? 2, 4, 6, 8, 10 वहां पे भी था. Rule is not changing, so general term will remain 2n. अब ये guess work है. मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि यहां पर हमारे पास जो सीक्वेंस है वो इवन नेचुरल नंबर्स का है. That's why 2n is correct. मैंने एक सिंपली बोल दिया होता कि 2, 4, 6, 8, 10. Now what is the logic? What is the next term? You know it can be anything. But since I have told you already that this is the sequence of even natural numbers, so our rule is also correct. 2n represents all even natural numbers where n is a natural number. Right? So in the functional notation, जहां पे हम a n लिख रहे थे, functions के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फंक्शन स्टार्ट होगा कैलकुलस के कोर्स में, बट इतना तुम्हें फंक्शंस के बारे में पता है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. इट इज हाउ इट इज रेड, द लास्ट लाइन यू सी, f of n, right? f of n, where n is input, equals to 2n, 2n is output. So fn works same as an here, right? जैसे हम an लिखते हैं वैसे यहाँ पर fn लिखा हुआ है. So is this part understood? Hello? Yes, Okay. Okay. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर हमको जनरल टर्म बता दी जाए, जनरल टर्म का एडवांटेज क्या हो सकता है. अगर हमारे पास किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म है तो हम उस सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑल आई हैव टू डू इज टू पुट n equals to 1, 2, 3, 4 and so on, and the sequence, whatever sequence it is, वो generate हो जाएगा. See, first example, an equals to 5 minus n. When you put n equals to 1, 2, 3, 4, the sequence out there is 4, 3, 2, 1, 0, minus 1. Can you identify the sequence? Is it a special sequence? 4, 3, 2, 1, 0, minus 1. AP में है सर. तो स्पेशल मतलब आपका डेफिनेशन क्या है उसका? Special means जो तुमने देखा हो, पढ़ा हो, इसका तुम नाम जानते हो एटलीस्ट. Sir, it is in AP. ऐसा कोई स्पेशल AP नहीं है. -1 common अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भाई ये. -1 is the common ओ difference. अच्छा वैसा, हाँ यस सर. इट इज अरिथमेटिक. और क्या स्पेशल उसमें है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और सेकंड देखो, वेयर an is 2 power n. Geometric progression. This is geometric progression. Those who are not aware of it, don't worry. Geometric progression second sequence है हमारा, second progression. एनसीईआरटी क्लास में हुआ है. अच्छा हो चुका है. ओके. सर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो 2 into 2 into 2 होता तब होता ना. देखो ना, हो रहा है. वही पावर्स होते हैं ना. वही तो. देखो ना, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16 and so on. है ना. सेकंड जो है वो जीपी. बट एनीवेज, अभी तुम्हें एपी जीपी नहीं सिखा रहा हूं मैं. अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास जनरल टर्म है तो तुम्हारे पास पूरा सीक्वेंस है. नेक्स्ट स्लाइड. ये आ गया तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन. कैन यू राइट फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस? कम ऑन, हरी अप. इट शुड नॉट टेक मोर देन 30 seconds. कम ऑन, राइट डाउन द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस where the general term is provided. By the chat box. Open the chat box. Where is Kalyani? Kalyani will tell me the second term of the sequence. Kalyani, second term क्या है बताओ. -3. Yes, second term is -3.
एंड वेदांत बताएगा अभी। वेदांत फर्स्ट टर्म क्या है वेदांत? सर फर्स्ट टर्म 1 है। फर्स्ट टर्म 1। सदगुण ने भेज दिया विदु। ओके अरण्या ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ रहे हैं। तेजस्वी नो बेटा तेजस्वी इट्स नॉट यू कैन नॉट स्टार्ट विद -1 राइट? -3 पावर 0 -3 पावर 0 is +1. Others are correct. Almost everybody. Yes, everyone is correct. Shri Aditya सब लोग सही हैं. Alternating plus minus sign आएंगे. Whenever you see an even power 2, 4, 6, 8, positive answer आएगा. And whenever you see an odd power, you get yes, Venkatesh, you are also correct. So first term is 1. Next term is -3, 9, -27. Pratham is correct. 81 and -243. Right. बिल्कुल सही। नेक्स्ट स्लाइड सॉल्यूशन दिखाओ। ये देखो 1 -3, 9 -27, 81 -243। तो कुछ लोगों ने बेसिक एरर की है। -1 जिन लोगों ने फर्स्ट टर्म लिखा है चैट, तो -1 नहीं है फर्स्ट टर्म, है ना? फर्स्ट टर्म 1 है बिकॉज एनीथिंग पावर 0 एक्सेप्ट 0 ऑब्वियसली इज 1। So it is never -1. सर एक डाउट है सर 0th Iron is also correct. हाँ क्या करें? 0th टर्म होता है क्या सर? 0th टर्म तुम्हें डिफाइन कर देगी। मतलब यूजुअली लिखा था ना फर्स्ट टर्म से ही स्टार्ट करना है। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू स्टार्ट विद फर्स्ट टर्म। ठीक है बट 0 टर्म करके मतलब कुछ होता नहीं है इसका मतलब। 0th टर्म यूजर के ऊपर है। तुम डिफाइन करना चाहो 0th टर्म तुम कर सकते हो। 0th पोजीशन है ना कि भाई ये 0th पोजीशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। -1/3 हो जाएगा। हाँ। मतलब हमें जिस सीक्वेंस हम जो चैप्टर में है वहां पर सब कुछ 1 से ही स्टार्ट हुआ। इट इज ऑलवेज फर्स्ट टर्म A1। ओके ठीक है सर। करेक्ट। सबको आंसर मिल गया अभी इसका? नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। गुड। कैन यू अब देखो ये रिवर्स होगा। यहां पर वी हैव टू राइट अ रूल फॉर nth टर्म। मतलब इस सीक्वेंस को देखकर हमको nth टर्म बतानी, राइट? तो यहाँ पे ये सॉल्व्ड एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखो। मेरे ख्याल से फिर से एक बार 2/5 raised to n. हाँ दिस इज कॉन्ट्रेरी टू, मतलब हमने जो अभी देखा था, हमने अभी जो चीज देखी कि हाँ भाई नेक्स्ट टर्म क्या होगी, वो कुछ भी हो सकती है। सो दिस इज अ बिट कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी हैव जस्ट कवर्ड। इट कैन बी एनीथिंग बट यस इफ समबडी सेज नो एक्चुअली फर्स्ट टर्म इज अ जीपी, एक्चुअली सेकंड टर्म इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर किसी ने पहले से बता रखा है तो हम जरूर गेस कर सकते हैं कि इसकी जनरल टर्म क्या होगी। सो इफ यू लुक एट फर्स्ट एग्जांपल you see numerator में 2 is not changing, Power n. and yes and in the denominator it looks like it appears to be powers of 5, right? 5 square, 5 cube, 5 सर power 5 से 4. मल्टीप्लाई 1/5 से 2 मल्टीप्लाई times 1 Yes. harmonic So just by progression of looking at the 5n. sequence, looking at denominator numbers, powers of 5, first term 5 power 1, second term 5 square, third term 5 cube, fourth term 5 power 4. तो nth term में it should be, has to be 2/5 to the power n. Now it's a guesswork. It is correct, but apparently anything else can also be correct. If somebody says this is a GP, ये geometric progression है, तब तुम्हारा stand alone एक लौता आंसर 2/5 power n होना चाहिए। अगर किसी ने GP इसको नहीं बोला तो जैसे मैं पहले प्रूफ कर चुका हूं, आंसर कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, ऐसे तुम दूसरा सीक्वेंस देखो 3, 5, 7 and 9। 3, 5, 7, 9 थोड़ा सा गेस करना किसी को अगर मुश्किल हो रहा हो, और ये बताया गया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट? सो फर्स्ट टर्म इज 3। ऐसा लग रहा है कि हाँ फर्स्ट टर्म 3 मतलब ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2n + 1 टाइप के होते हैं, तो क्यों ना एक बार सोचा जाए 2 × 1 + 1। सेकंड टर्म इज 5, 2 × 2 + 1, 2 × 3 + 1, दिस वर्क्स। फोर्थ टर्म 2 × 4 + 1, यस इट इज आल्सो वर्किंग। तो हमारा जो रूल है वो अगर 4 टर्म्स के लिए काम कर रहा है तो फिर 5वें और nth टर्म के लिए काम करना चाहिए। सो फॉर nth टर्म इट शुड बी 2n + 1। सो it is not going to be difficult to guess the nth term, and there will be sequences, there will be progressions in which it can be difficult. तो वहां पे तुम्हें बताया जाएगा how you have to think, but the very fundamental thing is कि जो भी सीक्वेंस दिया जा रहा है उसकी स्पेशलिटी तुमको पहले बता देनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको बताना चाहिए कि द सीक्वेंस वी आर लुकिंग एट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
or geometric progression, there is actually a pattern, a unique pattern, then you can guess the general term correctly. Otherwise it can be anything. So don't worry, in this chapter in every question it will be mentioned that this is an arithmetic progression, this is a geometric progression, or how many, I mean, you're going to get many patterns, many sequences in this chapter. बहुत सारे आएंगे, लेकिन हर बार तुम्हें बता दिया जाएगा कि वो है कौन सा पैटर्न. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया ना सर. फिर जो सबसे ज्यादा ट्रिकियस्ट काम था पैटर्न पहचानने का, वो तो क्वेश्चन में दिया होगा फिर. बिल्कुल बिल्कुल, नहीं पैटर्न पहचानने के लिए जो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वहां पे दी होगी, बट ये जो लिखने वाला काम है ना कि तुम्हें an लिखना है, इट इज 2n + 1 2 पावर n, वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, है ना. तो उसके लिए भी वही तो बात है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होगी. हमको पहले बताया जाएगा ये AP, फिर हमें गेस करने की जरूरत नहीं है, देयर इज अ सेट रूल टू आइडेंटिफाई द जनरल टर्म. तो हम उस रूल को फॉलो करके जनरल टर्म को निकालेंगे. कोई गेस वर्क नहीं होता मैथ्स में. मैथ्स में अगर वो आंसर यूनिक है तो वहां तक पहुंचने के स्टेप्स होते हैं, और हमको वही सीखना है. सो लुक एट दिस एग्जांपल वंस अगेन. 2 6 12 20. इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सोचना कि फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 6 है, थर्ड टर्म 12 है, फोर्थ टर्म 20 है. और ये नोट करना है, नोट कर. Sir, but difference. So the difference of the terms is in AP. Yes, very good. Very good observation that difference of the terms is in AP. So we are going to look at such sequences later on. हम देखेंगे, पहले तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन बाद में चलकर हम ऐसे सीक्वेंसेस भी देखेंगे जहां पर खुद टर्म्स AP में नहीं है, बट इफ यू लुक एट द डिफरेंस ऑफ consecutive terms like second minus first, third minus second, fourth minus third, तो वो जो डिफरेंस है वो AP में आएगा. अगर थोड़ा सा और लेंथी क्वेश्चन बनाया जाए तो हो सकता है डिफरेंस AP में ना आए, डिफरेंस का डिफरेंस AP में आ जाए. You see? तो इस टाइप के सीक्वेंसेस भी हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं. एनीवेज, तो ये देखो यहाँ पर nth टर्म कैसे ऑब्जर्व किया गया है. तो फर्स्ट टर्म को लिखा हमने 1 into 2, सेकेंड टर्म को लिखा हमने 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, और फिर हमारे लिए गेस करना आसान हो गया कि जो जनरल टर्म होनी चाहिए वो होगी n into n plus 1. It works, right? 1 into 2, that means the position of the term into the next number, n into n plus 1, right? क्यों भाई, ठीक है ना? क्या होगी फिफ्थ टर्म? फिर इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी जो लिखी नहीं है? नेक्स्ट टर्म विल बी 32. 32. 6 into 5 5 into 6. हाँ वही 5 into 6. सही है. चलो, बीच में लोग जो है शॉक मत दिया करो यार, ऐसा तो ये कैसे हो गया, मुझे क्यों दिख रहा है 32? सर हाँ? पहला वाला जो आपने दिखाया था वो जीपी में था ना, जो पहला आपने जो दिखाया था उधर जीपी था. सही बात है, जो 5 वाला था ना, 5 के लेकिन पास वो उसको जीपी जीपी. में आप कैसे बोल रहे हैं AR n वो माइनस जीपी विधान जीपी का वेट करो, मैं जीपी दोनों पढ़ा रहा हूँ. अभी मैं जीपी एपी के बाद जीपी करूंगा, ठीक है? तो जीपी अभी तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, कॉलेज लेक्चर में पढ़ा है तो पता ही है कितने लोग सीरियसली आते हैं. जीपी वहां पे तुमने अगर पढ़ी हुई है तो 1/5 कॉमन रेशियो है, 1/5, ठीक है? हाँ 1/5. उसमें 1/5 कॉमन रेशियो. नेक्स्ट स्लाइड. सर इसको अगर AP में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? है नहीं तो लिखोगे, जबरदस्ती क्यों बना दोगे उसको? तुम केरला को ऑन पेज बना दोगे, ऐसा ना होता है. एपी थोड़ी ना. चलो, बट पलाश ने बोला ना कि सेम काउंट डिफरेंस है. कॉमन डिफरेंस एपी में है. हाँ. कॉमन डिफरेंस एपी में है ना, कॉमन डिफरेंस पे तुम एपी लिख सकते हो. ये देखो भाई, कैन यू गेस द नेक्स्ट टर्म एंड कैन यू राइट द जनरल Minus n cube. -n क्यूब. देखो कितना आराम से पहचान लिया. -n होल. यस आदित्य, श्रेयस, एवरीबॉडी इज करेक्ट. सब लोग सही बोल रहे हैं. -n क्यूब बिकॉज़ -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8, -3 का क्यूब -27. देखो तुम किससे रिलेट कर रहे हो? तुम 1 2 3 4 से, यानी इनपुट जो है वो 1 2 3 4 है और जो आउटपुट है वो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. तुम गेस कर रहे हो. तुम्हारा गेस बिल्कुल सही है. नेक्स्ट स्लाइड. You can write these terms as -1 whole cube, -2 whole cube, -3 whole cube, -4 whole cube. So obviously जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी -5 whole cube. और जो रूल होगा नेक्स्ट टर्म का वो क्या होगा? an equals to मिसप्रिंट हो गया, -n whole cube.
टाइपिंग मिस्टेक। आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो भाई, गैस करो क्या होगी जनरेटर में यहाँ पर। यस 20 हाँ 20 हाँ सर 20। 20 होगी कैसा? सर आपने पहले दिखा दिया था गलती से। अच्छा हाँ सर दिखा। 2n + 1 सर वो उसका डिफरेंस अच्छा, एपी में तो वैसे सर। भी फाइंड कर सकते हैं 2 4 6 8 फिर 12 + 8 अच्छा मुझे जनरल टर्म बताओ, 12 + 8 और फिर 20 प्लस जनरल टर्म क्या है? सर n into n plus 1। n into n n into plus 1 n+1, sure? yes, sir. अच्छा n into n plus 1 अगर है तो सर नहीं फर्स्ट सर n into n n n into n minus 1 n into n n into n minus 1. Yes, sir, n n - 1 into है। n minus 1 n into n minus 1 क्यों भाई सब लोग बताओ, सही बोल रहे हैं लोग? हाँ सर हाँ सर, वो वाला जो था वो सर n into n minus 1 ये 160 है। सर हम वैल्यूज पुट इन करेंगे। सही है। तो n into n minus 1 next। ये देखो 0 into 1, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4। Obviously next term is F5 is 4 into 5 which is 20 and the rule for the next term is n minus 1 into n। सही बात है, करेक्ट। ये देखो भाई कैसे करेंगे फिर ये सब चीजें, लाइक क्या करेंगे? करने के लिए वन के टर्म्स में ऐसा कुछ डालना होगा कि लाइक हाँ भाई 1 को बनाना- फर्स्ट टर्म से, सेकंड को 2 मतलब से, 6 को थर्ड 2 को 3 6 को से मतलब लेकर। 3 से डिवाइड करो, फिर 4 को तो ऐसे कुछ ना कुछ वो है। अब वो डिपेंड करता है यार क्वेश्चन पे, ना क्वेश्चन ट्रिकी भी हो सकते हैं। ये देखो थोड़ा सा एक सर You ये work in a grocery n² होगा store, क्या? you're stacking apples in the shape of a square pyramid. Square pyramid means you know what is a pyramid, right? Pyramid shape Yes, सबको पता ही सर होगा। pyramid with 4 sides and a base square। Yes, Sir, yes. So base is a pyramid square अंदर and you रहेगा क्या? take Numbers का sum होगा ना, summation of हैं? summation of square numbers होगा ना, मतलब 1 plus 3। यहाँ पे हाँ sum सर, है, n² listen, + listen. n - 1 होल स्क्वायर, सही है क्या? Cubes का sum होता है n square n plus 1 whole square by 4. You work in a grocery store and stacking apples in the shape of a square pyramid with 7 layers. Write a rule for the numbers of apples in each layer. So we are not counting the total number of apples. We are looking at each layer only. Layers में हर layer में कितने apple हैं वो बताना। सर पहले लेयर में 1 होगा, दूसरे में 4 होंगे, 4 तीसरे होंगे, में तीसरे 9। में सर वो बट वो डिपेंड करता है ना कि वो फील्ड है कि नहीं। अगर फील्ड नहीं, नहीं अभी हम तो n² assume ही कर होगा। रहे हैं 9 कि- होंगे। यस सर। देखो ये अगर फिल नहीं होगा तो मुझे लगता है कि ये रहेगा ही balance नहीं ना। करना मुश्किल होगा। हाँ। ना तो फिल, अब ये फिल्ड है पूरा, ठीक है। अब बताओ हाँ सर तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ एंड सर वही होगा ना, One, n² four, स्क्वायर हो nine, जाएगा 1 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। 3 बिल्कुल स्क्वायर सही 4 बात है। मतलब अगर तुम स्क्वायर बनाना चाहते हो तो स्क्वायर ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर भी अगर तुम स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो और इमेजिन कर रहे हैं कि सारे एप्पल्स आइडेंटिकल हैं तो फिर हमको फर्स्ट 1 तो दिख ही रहा है, सेकंड जो लेयर है उसमें 2 + 2 4 दिखने चाहिए, 4 थर्ड में हमको 3 + 3 + 3 यानी कि 9 होने चाहिए, नेक्स्ट में 4 + 4 + 4 + 4 टाइम्स 16 होने चाहिए। सो दैट मीन्स ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारा। इन ईच लेयर वी हैव 1 दैट इज 1 स्क्वायर, 2 दैट इज 2 स्क्वायर, 3 दैट इज 3, 9 दैट इज 3 स्क्वायर। तो इस रूल के हिसाब से जो nth लेयर होगी वहां पर हमारे पास n स्क्वायर एप्पल्स होने चाहिए, करेक्ट। तो ये पिरामिड जो है वो फिल्ड है, ऑब्वियसली ईच लेयर इज फिल्ड विद एप्पल्स। अगर ये ऑब्वियसली हॉलो होता तो नंबर्स चेंज होते, बट फिलहाल यहाँ पे फिल्ड है। तो अगर हमको रूल लिखने को कहा गया तो आंसर इज n स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ सीक्वेंस। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इज ऑर्डर्ड so that there is a first, second, third members. Difference between finite and infinite: finite means there is a last term, infinite means the sequence continues without stopping. इतनी बात हम समझ चुके हैं, right? Now what is series? What do you think is the difference between a sequence and a series? So basically देखो कोई difference नहीं है। Sequence और series तुम बोलोगे कोई mind नहीं करेगा, mathematician तो बिल्कुल mind नहीं करेगा, English वाला बंदा थोड़ा सा mind कर सकता है, trust me, क्योंकि इंग्लिश में इन दोनों सब्जेक्ट्स, इन दोनों वर्ड्स की अलग अलग डेफिनेशंस, मीनिंग्स हैं। सीक्वेंस में जहां पर तुम ऑब्जेक्ट्स को कॉमा से सेपरेट करते हो, सीरीज में देयर विल बी मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व।
So it can be a product series, it can be a summation series. So basically कॉमा को हटाकर अगर तुम कोई बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया, 2 + 4 + 6 + 8 + 10. So this is an example of a series. So मेरी बात, सीक्वेंस और सीरीज का बेसिक डिफरेंस ये है कि सीक्वेंस में नंबर्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और सीरीज में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं, ठीक है ना? सर इनफिनाइट सीक्वेंस है तो मैं डायरेक्टली उसका सीरीज का इंफिनिटी लिख दूंगा ना, सीरीज का इंफिनिटी। सीरीज का इंफिनिटी लिख दूंगा, क्या मतलब? सॉरी मतलब इनफिनाइट सीक्वेंस है अगर, तो मैं उसका समेशन सीरीज डायरेक्टली इंफिनिटी लिख दूंगा। नहीं बेटा, यही तो कमाल है। हो सकता है कि तुम्हारे पास जो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है, इसको तो हम डिस्कशन करेंगे, अभी तो बहुत लंबा डिस्कशन इस पे होगा। हो सकता है कि तुम्हारे पास जो सीक्वेंस हो वो जो तुम देखो उसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उसका आंसर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा हो, बट देन देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन व्हिच यू हैव इनफाइनाइट टर्म्स, बट द सम ऑफ दीज इनफाइनाइट टर्म्स इज सरप्राइजिंगली फाइनाइट। -1 + 1 -1 + 1 नहीं होगा। -1 + 1 is infinite terms लोगे तो it is not finite. No. I mean, it doesn't reach to a fixed value. इसको कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बोलते हैं। तुम ग्रेजुएशन जाओगे, बीटेक करोगे, तो वहां पर एक कोर्स आएगा मैथमेटिक्स में, और वहां पर तुम पढ़ोगे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज। तो वो मैं तो बताऊंगा, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी तुम्हें केवल सीरीज देखनी है, सीरीज क्या होती है। अब सीरीज यानी जब तुम सम लेते हो, बेसिकली तुम देखोगे मोस्टली समेशन सीरीज ही होती हैं, और इस सिग्मा को हम पहले से जानते हैं, पहचानते हैं, है कि नहीं? क्यों भाई? सिग्मा तो हम काफी यूज कर चुके हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री में हमने यूज किया हो, कई बार हमने क्वाड्रेटिक में भी यूज किया है इसको। तो सिग्मा नोटेशन को सभी लोग जानते हैं, क्यों? ग्रीक लेटर, ये जो सिग्मा हम यूज करते हैं, जैसे हमने लिखा है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और इसके मैं सिंबॉलिक, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं सारी टर्म्स लिखूं, उनको ऐड करूं, मतलब ऐड तो मैं बाद में करूंगा, इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? सिग्मा, देखो ये सिग्मा वही सिंबल है, सिग्मा 2i, वेयर i is 2i क्या है? ये इसका जनरल रूल, ये इसकी जनरल टर्म है, राइट? लाइक 2n। सो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा 2i, वेयर i is varying from 1 to 5, है कि नहीं भाई? बताओ। हाँ सर। एक मिनट 3 +, हाँ, यहां लिखा हुआ था 2 4 6 8 10, राइट? नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द जनरल, मान लो नाउ दिस इज एन इनफिनिट सीक्वेंस, मान ये नहीं भी होगा चलेगा, बट जो जनरल टर्म है वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया सिग्मा 2n n belongs to 1 to infinity। तो अब अज्यूम करो कि मुझे इन सारी टर्म्स को ऐड करना है, एंड आई विश कि ये जो एडिशन है वो फाइनाइट टर्म्स का, फॉर एग्जांपल टिल 10 ओनली। सो आई कैन रिप्रेजेंट दिस सम ऑफ 5 टर्म्स यूजिंग द सिग्मा symbol. How? I will write sigma 2n 1 to 5 right. Sigma 2n n equals to 1 to 5, n is equal to 1 where to n 5। is varying, है ना? ये जो n है, it is called index of summation, index of summation। जैसे हमने n यूज किया या फिर i यूज किया, जो भी है, ठीक है? k भी यूज होगा, कभी j यूज होगा, कुछ भी यूज हो सकता है। तो how do we read this? The sum starts from n equals to 1, because the first term is 2, and how many terms are here? 1 2 3 4 5 to 5, n equals to 1 to 5. So this symbolic representation is same as some of these 5 terms, because when you will put n equals to 1, it will give you 2. When you put n equal to 2, 4 3 6 4 8 and finally 5, the upper limit of this summation tells you what is the last. So as Advik said कि भाई इसको इन्फिनिटी कर देते हैं, दैट मींस यू आर लुकिंग एट द सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स, राइट? उस केस में क्या आंसर इन्फिनिटी आ ही जाएगा, बट अगर तुम इनफिनाइट टर्म्स के सम को भी एक्सप्रेस करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, राइट? तो ये सिग्मा रिप्रेजेंटेशन, सिग्मा जो है वो इस चैप्टर में यूज होने ही वाला है, बिकॉज हमारे चैप्टर की सीक्वेंस एंड सीरीज है, तो सीरीज के सम
कई बार हमको सीरीज के सम निकालने होंगे और वहां पे ये सिग्मा नोटेशन यूज होगा। सो आई थिंक इसमें मुझे कुछ सिखाना था नहीं, बट एक बार रिवाइज हो गया हमारा, हमको समझ में आ गया कि सिग्मा कैसे यूज करना है, राइट। चलो प्लस 3 और आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, तो ये है देखो अपर लिमिट ऑफ समेशन एंड दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट ऑफ समेशन। ठीक है, क्यों भाई तुम लोग लिख रहे हो क्या, उसको जरूरत है? नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज होती है जैसा हमने डिस्कस किया कि जो अपर लिमिट थी वो 5 की जगह पर इनफाइनाइट हो जाती है ना। सो I is varying from 1 to infinity. We are not stopping at 5th term. We will continue with the terms. We'll go to infinite terms. Next. अब ये देखो लिखने की फिर कोई जरूरत नहीं है, बस मैं दिखा रहा हूं कि हर एक सीरीज के लिए पहले हमने प्रैक्टिस की कि उसकी जनरल टर्म कैसे लिखी जाएगी, और अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि उसका सम सिग्मा की टर्म्स में रिप्रेजेंट कैसे करना है। सो लुक एट दिस 4, 8, 12, 100। हमने सबसे पहले, अच्छा सिग्मा में अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करना है तो अब तक आई थिंक बाय द टाइम यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द जनरल टर्म, राइट। वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट रूल, राइट। देखो ना, फर्स्ट एग्जांपल में 4i, अगर मुझे 4i नहीं दिखा होता तो मैं सिग्मा में लिखता क्या है कि नहीं भाई। तो सबसे पहला काम होगा जनरल टर्म निकालना, और फिर उसी जनरल टर्म पर सिग्मा लगा दो, उसकी लिमिट्स डाल दो। फॉर एग्जांपल 4, 8, 12 अप टू 100, हमने रूल आइडेंटिफाई कर लिया, इट इज 4n From 1 to 25. yes, and it stops at 100, 4 into 25. so sum इसका कैसे लिखोगे? It is sigma 4i where i is varying from 1 to 25. सेकेंड एग्जांपल में 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन। तो यहां पर भी हमने देखा कि डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, और न्यूमरेटर में वही लिखा है जो टर्म का नंबर है। फर्स्ट टर्म में 1 लिखा है, सेकंड टर्म में 2 लिखा है, थर्ड टर्म में 3 लिखा है। सो जनरल टर्म इज n by n plus 1, I upon I plus 1, where I is varying from, and this time we have an infinite series, so यहां पर I varying from 1 to infinity हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़े। यस Yes sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट। सो देखो एक सॉल्व एग्जांपल 25, 50, 75, 250। Sigma 25n where n varies from 1 to 1 to 10. दिख रहा है कि 25 कॉमन निकल रहा है, और 25 into 2, 25 into 3 and so on, 25 into 10, and we have sigma 25i. Nothing to write, ठीक है, बहुत easy सा एग्जांपल है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ये हो चुका है। अब देखो, मान लो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, और क्वेश्चन है सिग्मा k square plus 1 where k is varying from 5 to 10. Press 3. सर उसमें बस 5 से 10 तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और कोई मेथड नहीं है। और कोई मेथड है, लेकिन हम वो मेथड डिस्कस n करेंगे। square. हाँ, वो k स्क्वायर का एक फॉर्मूला है मेरे पास, बट बिफोर दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड few things by this example. Obviously our first method is, it says that you keep on substituting the values of k. For example हमने k को रखा 1, तो 1 square plus 1 ये हो गया 2. So first term is 2. k equals to 2 रख दिया मैंने, वो 4 plus 1 5. k equals to 3 रख दिया मैंने, 9 plus 1 10. 4 रख दिया मैंने, 17, और फाइनली 5 रख दिया तो 26. क्या होगा इसका सम? 34, 6, 60. 60. Answer is 60. ठीक है ना? अब क्या इसका कोई और फॉर्मूला है? क्या हम किसी और मेथड से कर सकते हैं? यस, फॉर्मूला है, दूसरे मेथड से कर सकते हैं, पर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट राइट नाउ, बिकॉज जो भी इसके फॉर्मूले हैं वो लेटर ऑन आएंगे। सिग्मा के स्क्वायर का फॉर्मूला है। मैं चाहता हूं कि हम दूसरी एक चीज पर नोटिस करें, वो ये है कि क्या इस सिग्मा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे एडिशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सर सिग्मा के स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 k square plus sigma 1। यस, क्या इन दोनों पार्ट्स को हम जब स्प्लिट कर देंगे
क्या इस समेशन का और इस समेशन का आंसर सेम आएगा? Yes. यस सर And this is something important for you to understand that sigma can be distributed in addition. Subtraction is a type of addition only. In addition or subtraction or not. Is it can be distributed? और चेक करते हैं. अगर हमारा आंसर सेम आया तो उसका मतलब हम कर सकते हैं. हम वेरीफाई कर रहे हैं. Let's count. Let's calculate sigma k square. K equals to 1. Yes, sir, because sigma is just repetitive addition and it is communicated. 55 आ रहा है सिग्मा के स्क्वायर. तो ये देखो, कुछ लोग, थोड़े बहुत लोग, है ना, कंफ्यूज होंगे सिग्मा 1 को देखकर. सिग्मा 1 को देख कंफ्यूज मत होना. सिग्मा 1 का मतलब है, when I said sigma k square, you were not confused. When I said sigma k square plus 1, you were not confused because you knew that you have to put the value of k as 1, 2, 3, 4 and so on to 5. But here k is missing. अब तो यहाँ तो k है ही नहीं. ये क्या कर दिया? हम क्या करेंगे इस 1 का? K power 0. हम लोग इसका मतलब जो zero रूल है हमारा, को 5 बार ऐड हमारी करते जो हैं. जनरल टर्म है वो 1 है. That is fixed. If I am talking about this sequence, अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूं, अगर मैं इस सीक्वेंस को पूरा लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? 1, 1, 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1. Every term is 1. Right? है तो सीक्वेंस ही ना यार, सारी टर्म्स 1 है, कांस्टेंट सीक्वेंस है और क्या. तो क्या होगा इसकी 5 टर्म्स का सम? सर 1 plus 5 1 होगा. plus 1 plus 1 5 times. 1 into 5. 55 plus 5 6. So if you calculate, it is 14 plus whatever. Sir, that is 30, 55. 20, and 55. that This is 60. 55 plus 5 back to square 1. 60. The same answer. 60. Right? हमें किसी एग्जाम्पल की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं थी. बिल्कुल सही बात है कि एडिशन जो है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता ही है. मैं a plus b एक साथ लिख रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल a plus b and a1 plus b1. मैं a plus a1 पहले कर लूं, b plus b1 बाद में करूं, क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली वो 4 नंबर्स तो ऐड ही होने वाले हैं. तो इनको मैं पहले ही ऐड कर लूं, 1 को बाद में ऐड करूं, इनको पहले ही ऐड करके वापस साइड टर्म्स को ऐड करूं, बात तो सेम है. सो कुल मिलाकर सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन. अगर ये माइनस भी हो रहा होता तो ये सब कुछ सेम होता, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस साइन आ गया होता. राइट? क्यों भाई? तो सिग्मा की एक प्रॉपर्टी है जो हम नोट डाउन करेंगे थोड़ा आगे चलकर, बट मैंने इस एग्जाम्पल सोचा कि तुमको पहली ये चीज दिखा दी. नेक्स्ट स्लाइड. तो ये रस एक और सॉल्व एग्जाम्पल जहां पर k स्क्वायर प्लस 3 है. नीड नॉट टू लुक एट दिस. चलो आगे बढ़ो. नेक्स्ट है ना, k स्क्वायर माइनस 1 वही काम हुआ. आगे बढ़ो. और इसको रुको और देखो, मैं फिर वही बता रहा था जो 34. कि अगर तुम्हें सिग्मा 1 दिखाई दे रहा है, where I is varying from 1 to 34, so don't get confused. Sigma 1 means the general term is 1. It starts with 1, it ends on 1. Every term in this series or sequence is 1. So 1 plus 1 plus 1 plus 1 so on Up to to 34 times. It should be 34. ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, यहां पर मैंने कोशिश की है एक फॉर्मूला दिखाने की, लेकिन बात क्या है कि ये फॉर्मूला अभी तक आया नहीं है क्योंकि हमने अभी तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट नहीं की है. बट स्टिल मुझे लगता है क्लास में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये फॉर्मूला पहले से देखा हुआ है. द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज n into n plus 1 by 2. तो बहुत दूर नहीं है ये फॉर्मूला. जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे तुमको ये फॉर्मूला दिख जाएगा. बट फिलहाल जो क्वेश्चन था वो ये था कि फाइंड सिग्मा n where n is varying from 1 to 6 and you know what is going to be your answer. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 and your answer is 21. Add कर लो. But then there is a formula. When you ask me, is there a different method? Yes, there is a method. There is a direct approach to find the sum. और वही अप्रोच तुम्हें इससे अपन सीखनी है. ये फॉर्मूले कैसे डिराइव होंगे, क्या करना है, वो सब डिस्कस करेंगे. ठीक है? तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 21 है. Do we need to discuss anything on this particular page? सर अगर i की वैल्यू बदलती है, मान लो i इज इक्वल टू 2, तो फॉर्मूला फिर बदलेगा ना, यानी 10 plus 2 हो जाएगा ना वो फिर.
I का फॉर्मूला I इज इक्वल टू मान लो 2 होता है तो n इंटू n प्लस 2 हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 2 होगा ना, I इक्वल्स टू कहाँ पर हो रहा है वेदांत? होता है तो मैम लाइक अगर I अरे कहाँ पर, मतलब फर्स्ट टर्म बोल रहे हो या क्या बोलना चाह रहे हो? ना सिग्मा नीचे में जो बोलना चाह लोअर रहे हो? लिमिट, लोअर लिमिट अगर I इज इक्वल टू 2 होता लोअर लिमिट अगर तुम 2 रखोगे तो तुम तो- सेकंड टर्म से स्टार्ट कर रहे हो, इसका मतलब हाँ फर्स्ट टर्म को इग्नोर कर रहे हो तो फर्स्ट टर्म सबट्रैक्ट कर दो, सब में से -1 कर दो, खत्म। n + 2 करोगे तो कुछ और हो जाएगा ना यार। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको मत देखो, जिन्होंने देखा हुआ है बस उनके लिए ठीक है, एक बार उनको रिकॉल हो गया होगा फॉर्मूला। नेक्स्ट राइट, तो मैं ये कह रहा था कि जो प्रॉपर्टीज है समेशन की वो हम लोग लिख लें, और यहां पर सबसे पहली चीज ये है कि सिग्मा को ओपन करना सबको आना चाहिए, सबको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा यानी सम ऑफ द टर्म्स इज इट विल ऑलवेज रिक्वायर द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। प्रेस 3। हाँ, दैट मीन्स अगर किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म सपोज an, right, and sum of n terms is Sn. So there is a relation between sum of n terms and the general term a. How you can write this? It can be written as Sn equals to sigma a, instead of writing n, because an तो हम sum भी n terms से ले रहे हैं, मैं यहाँ पर कुछ भी हो सकता हूँ, i j के कोई भी sum, मान लो मैंने k यूज कर लिया, and k is varying from 1 1 to n. to n. to n, yes. Now you will consider an as the last term, right? an हमारी यहाँ पे last term, because obviously we are looking at n terms only. देखो ना, upper limit n है, इसका मतलब क्या हुआ? That we are starting from k equals to 1 and we are ending on k equals to n. So an is the last, but this also gives us the rule on, मतलब मैं अगर in terms of n लिखूंगा फिर उसको k में change कर दूंगा तो बात तो सेम है, फर्क क्या पड़ता है? So you write this, इसको ध्यान रखना, ये चीज देखो, Sn equals to sigma ak, where k is varying from 1 to n, and you know how to open this. यहाँ पर अगर तुम k को 1 रखोगे, you will get the first term a1. If you will put k equals to 2, second term a2, and so on to, if you will put k equals to n, which is nothing but obviously sum of the n terms of this series sequence, right? Press 3. देखो यही यहाँ पे लिखा होगा, यही Sn है, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। अब ये जो प्रॉपर्टीज मैं, वैसे मैं स्लाइड भेजूंगा लेकिन प्रॉपर्टीज तुम लिखते हुए चलो नोट्स में अपने। नेक्स्ट स्लाइड, तो टर्मिनोलॉजी हम समझ गए हैं, इंडेक्स ऑफ समेशन, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट, ये रही मेरी प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज that if we have a constant inside sigma, see, sigma c into ak, where k is varying from 1 to n. देखो हम इस c को बाहर ले आए, इस कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट मतलब क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ k, it is not written in terms of k. We can take this constant out. Is it correct? क्या तुम्हें इसकी फील आ रही? हाँ, लग रहा है कि ये चीज सही है? हाँ? अगर हम लोग लिख सकते हैं CA1 plus CA2 plus CA3 till CAN, फिर C कॉमन ले लेंगे, A1 plus A2 plus A3, that is the same. करेक्ट। ये देखो भाई, जिन लोगों को थोड़ा भी डाउट हो, लुक एट दिस एग्जांपल। मैंने यहाँ पे तुम्हें केवल बताया था कि हम सिग्मा में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेट अस चेक दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज वी हैव 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. What is the sum? First of all, what is the sum of these 5 terms? Tell me. जल्दी से ऐड करो। 30. क्या है? सर 30, सर वो It is. प्रॉपर्टी से भी 30 आ रहा है। Yes. अब हमारी 2 को प्रॉपर्टी बाहर ले लेंगे। हमारी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर देखो n वेरी कर रहा है, n is varying from 1 to 5. But if you look at this 2 is multiplied to n. 2 works as a constant here. Constant का मतलब सिग्मा का कांस्टेंट वो है वो जो भी n से इंडिपेंडेंट है। यहाँ तो 2 कांस्टेंट नजर आ ही रहा है। मान लो यहाँ पर k लिखा होता है, n m लिखा होता, j लिखा होता, कुछ भी जिसका n के चेंज होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम हमेशा बाहर ला सकते हैं। So by this property, it can be written as 2 times sigma n, where Sigma n is is varying equal from to 15. 1 to 5, and you can verify by n equals to 1 Sigma to 5. n is n का 15. मतलब हुआ 15, 1 yes sir, 2 plus times 2 15. plus 3 plus so on to 5, 4, 5.
ये हमने कुछ और नहीं किया, ये हमने देखो इन नंबर्स में से 2 को कॉमन निकालना है, वही बात तो है। एग्री भी, यहां से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, वही तो कॉमन निकालना है, सम तो ऑब्वियसली सेम आने वाला है। प्रेस 3. So first property is that if you see a constant inside sigma, it is getting multiplied to general term, you can take this constant out of the summation sigma. First property. Second और third property मैंने अभी तुम्हें बताई, जो distributive property है, sum और difference में वो काम करती है. So sigma AK plus BK, इसको हम sigma AK plus sigma BK लिख सकते हैं, correct? क्यों भाई? और अगर ये सब्ट्रैक्शन होता तो भी हम यहां पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. बट इन द मीनवाइल, इसके पहले हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएं. व्हाट इफ वी हैव टेस्टिंग, वी हैव प्रोडक्ट. व्हाट इफ वी हैव प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल सिग्मा n स्क्वायर मेथड, विल इट बी इक्वल टू सिग्मा n मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा n? क्या ये दोनों चीजें सेम होंगी? सोच के बताओ. नहीं सर. सिग्मा n स्क्वायर नहीं का सर, क्या नहीं होगा? सपोज मैं n इक्वल्स टू 1 to 5 मान लो, हमने निकाला भी हमने निकाला था 55 थे. 1 4 9 16 25 सम 55 आता है. डू यू थिंक these two sums will be same? Because यहाँ पे अगर आ रहा, दूसरा वाला 225 आ रहा. यहाँ पे जब तुम इसको ऐड करोगे, so it will be 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, इसका सम आएगा 15. 15 into 15 is 225. But this is not 225, this is 55 only. So what is the difference सर between these उसका two? रूट ले लेंगे तो तो 15 है. 15 is also not correct, है ना? जहां पर ये सिग्मा n स्क्वायर तुम्हें कह रहा है कि सभी नंबर्स का स्क्वायर करो और फिर उनको ऐड करो, ये डिफरेंट है. ये डिफरेंट कैसे है? ये कह रहा है कि आप सभी नंबर्स को पहले ऐड कर लो, 1 plus 2 plus 3 on so on to 5, और फिर उसकी स्क्वायरिंग. So this is an inequality, right? So that n square will be greater than n into sigma n. Smaller than, sorry. करेक्ट. और ये कौन सी इनइक्वालिटी है? डू यू नो द नेम ऑफ दिस इनइक्वालिटी? पता है? Cauchy-Schwarz. सिग्मा n सर कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी. केपी भाई है. हाँ सर के एनीवेज, तुम्हें नाम पता हो इनइक्वालिटी का, ना बताओ, तुम्हें दिख रहा होगा कि ये सम इससे तो कम आएगा ही. हाउ? व्हाट इज a plus b plus c का होल स्क्वायर? इट इज a square plus b square plus c square, और यहां पे खत्म नहीं होता. देन कम्स द एक्स्ट्रा टर्म्स लाइक 2ab 2bc 2ca. all the terms are positive. So obviously when you will open this perfect square, ये टर्म्स तो आएंगे, इनके अलावा बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो ये जो भी है वो इससे तो बड़ा होगा ही होगा. सो क्लियर सी बात है कि जो हमारा फर्स्ट सीक्वेंस है वो छोटा है इस सीक्वेंस. कुल मिलाकर समेशन की प्रॉपर्टी में ये बात ध्यान रखना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव था, बट मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट समेशन. सिग्मा n स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा n इंटू सिग्मा n. कुछ स्पेशल केसेस में हो भी सकता है, बट बहुत ही स्पेशल केस में ऐसा होगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांसेस. ठीक है. प्रेस 3. सर आपने नाम क्या बताया था? कॉची-श्वार्ट्ज. आएगा, बताऊंगा, इसी चैप्टर में आएगा. अच्छा ठीक है. ना? पिक्चर से आईडी दिखा सकते हैं? सर आपने बोला था केवीबी Last में time. जेई में है क्या सर वो कॉची-श्वार्ट्ज? जेई में नहीं है कॉची-श्वार्ट्ज, नहीं. बट हाँ क्योंकि वो प्रॉपर्टी एएम जीएम से बेटर है, इसलिए मैं बताता हूँ हमेशा, तो वो तुमको यहाँ भी बताऊंगा, है ना. हालांकि केवीवाई लेक्चर में बताया मैंने, यहाँ भी हम उसको एक बार गो थ्रू करेंगे. सो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज नोट डाउन, नोट कर लो यार इसको. आज हम बहुत बेसिक हमने पढ़ा है, मुझे पता है कई लोगों को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन चैप्टर है भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा. एपी तो एपी तक तो चीजें तो पढ़ाई हुई है पहले से. जीपी और एचपी भी बहुत अच्छी. कई जगहों पे एक्चुअली ये फर्स्ट चैप्टर होता है, पता है. जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया था, दे स्टार्ट विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज दिस इज आई कैन नॉट से इजीएस्ट, बट यस you will feel सर comfortable. सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शन से भी स्टार्ट करते हैं ना. सेट रिलेशंस एक्चुअली वो कॉलेज
स्कूल का सीक्वेंस होता है सेट रिलेशंस का। हमें रिक्वायरमेंट सेट रिलेशंस की भी नहीं होती, बिकॉज सेट थोड़ा बहुत तुमने गो थ्रू किया होता है। रिलेशंस की जो जरूरत है वो पड़ती है 12th में। जरूरत मतलब रिलेशंस जो है वो टॉपिक कहीं काम ही नहीं आता, तो बहुत ही लॉजिकल तरीके से ये सीक्वेंस बनाया जाता है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री या क्वाड्रेटिक पढ़ाने का रीजन क्या है? बिकॉज ऑलमोस्ट इन एवरी चैप्टर we are going to use trigonometric functions, we are going to use quadratic, so that is the reason you must be aware of the definitions, formulas, algebra जो भी है वो सब तो पता होना चाहिए। तो एक रीजन है सीक्वेंस का कि पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, फिर हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा, लॉग मॉड हमने पढ़े, क्योंकि लॉग मॉड यहाँ भी आएंगे, हर चैप्टर में ऑलमोस्ट होंगे। तो बेसिक्स हम कवर कर रहे हैं। अब ये देखो यहाँ से वर्किंग स्टार्ट होगी, उसका यूज यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा। हो सकता है एक सीरीज है जिसमें केवल ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स हो। देखो तुमने समेशन सीरीज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, राइट? साइन अल्फा प्लस बीटा एंड सो ऑन, है कि नहीं? ठीक है भाई, तो ये फर्स्ट नोट कर लिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज क्या है। ये सिग्मा सी वाली जो प्रॉपर्टी है इसको देखो, सिग्मा सी इंटू 1 की तरह देखो। C को हम बाहर ले जा सकते हैं, एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट इज सिग्मा 1। सिग्मा 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। सिग्मा 1 इज व्हाट? 1 + 1 + 1 n टाइम्स, ऑब्वियसली इट इज n। तो आंसर क्या आएगा? Cn। क्यों भाई, क्या बात सबको समझ आ रही है? फोर्थ प्रॉपर्टी यस क्या सर। सभी को समझ में आ रही है? तो लास्ट स्लाइड 1। हाँ सर। अरे यार तुम लास्ट स्लाइड तब से क्या कर रहे हो उसमें? 3 ही तो थे यार। चलो भाई लास्ट स्लाइड फिर दिखाओ। लास्ट स्लाइड दिखाओ। आकाश खो गया। लास्ट स्लाइड, हाँ आ गई। बताओ क्या वो कुछ पूछना है क्या? सर इसमें जो ए के जो आपने लिखा है A1 + A2 + A3 वो तो सही है सर, लेकिन A1 और A2 दोनों अलग अलग टर्म्स होंगे ना, A1 और A2, तो उसको सिग्मा के अंदर फिर A के टर्म्स में कैसे लेंगे? जो सब अलग अलग टर्म है ना, A1 अलग है, A2 अलग है, A3 अलग है, तो खाली तो सिग्मा के अंदर कुछ मान लो, कुछ सपोज A1 1 है, A2 5 या फिर कुछ भी रैंडम नंबर से A1 A2 A3, तो सिग्मा के अंदर वो वैसे कैसे लिखेंगे? जो डिफरेंट अरे जो A1 है उसकी वैल्यू वहां रखोगे, A2 वैल्यू वहां रखोगे, उसमें क्या दिक्कत है? क्या पूछ कर रहे हो? ए के आपने लिखा ना, तो ए मतलब जैसे सपोज ए ऑफ एन लिखा है बेसिकली, तो A1 + A2 + A3 A3 4 होगा। लेकिन वहाँ पर ए की जो वैल्यू है, अलग अलग जो ए की वैल्यू, वो एक खाली ए की सिंबल में कैसे लिखेंगे? सिग्मा के अंदर वही तो जनरल टर्म है ना। ऑड नंबर्स है तो 2k + 1, इवन नंबर्स है तो 2k, स्क्वायर है तो k स्क्वायर, जो भी एक होगा लिख देंगे वहां पर। अच्छा, रूल तुम्हें आइडेंटिफाई करना अच्छा पड़ेगा। वही रूल ही है क्या? हाँ वही जनरल टर्म तो है। अब चले भाई नेक्स्ट स्लाइड पे। यस नेक्स्ट स्लाइड भी हो गया। तो बहुत ही ज्यादा मतलब कंसंट्रेट कर रहा है स्लाइड पे, ऐसा है क्या वैसे इसमें? ठीक तो है। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट स्लाइड में 5th और 6th, स्पेशली 6th का जो प्रूफ है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम चाहो तो उसको, इट इज ऑप्शनल है ना। जो 6th पॉइंट है वो तुम्हारे लिए ऑप्शनल है। इट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। इफ यू ओपन द सिग्मा 6, देखो ना क्या आएगा, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टू n स्क्वायर। तो इनका जो सम होगा, ये सम इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। और तुम चाहो तो जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स देखे हैं, हाँ इससे k³ का निकाल सकते हैं ना। इससे तुम k³ कैसे निकालोगे? वेरी इंटरेस्टिंग, क्या बात है। तो जरा बताइए आप कैसे आप इससे सिग्मा k³ निकाल सकते हैं, बताइए। नहीं वो सेम बात हो जाएगी, सिग्मा k टाइम सिग्मा k। हाँ, नहीं कर सर सकते इसको ना, हम मतलब वो चलेगा। k³ - k - 1 होल क्यूब वो वाले आइडेंटिटी से हाँ खबर क्या सर, ये एनसीईआरटी में कर चुके हैं हम। कर चुके हैं सर, क्या बात है। हाँ सर। Not bad. सर मतलब प्रूफ करवाया था सर, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, पर एनसीईआरटी के बुक में था ये। अच्छा तो प्रेस 3, ये जो तुम्हें सीरीज दिख रही है ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन टू n स्क्वायर, इसका सम लिखा हुआ है ये n + 1, और ये एक्चुअली एक फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला है, बट एनीवेज इसका जो प्रूफ है वो हम देखेंगे
आज से तीसरे या चौथे लेक्चर में इसका प्रूफ आएगा, बट अभी हम वेरीफाई तो कर सकते हैं। इज इट करेक्ट? देखो ना, चलो वेरीफाई करते हैं इस एग्जांपल में, जहां पे हमने स्क्वायर्स को ऐड किया था, 5 स्क्वायर्स को, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, और आंसर देखो 55 आता है। इज इट करेक्ट? पुट n इक्वल टू 5 एंड हाँ सर ठीक है, 5 रख के देखो, आया सर ठीक है। 5 times 6 into times 6 into 11 upon 6. It is 55. जादू है? Yes. कैसे काम कर रहा है भाई? देखेंगे इस जादू को। प्रेस 3। लेकिन जो 5th पॉइंट लिखा हुआ है वो सबको समझ में आता है, सबने एपी पढ़ी हुई है, सबको समझ में आता है कि 5th पॉइंट जो है वो प्रूफ कैसे किया जाए। क्यों भाई? क्या लिखा हुआ है 5th पॉइंट में? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, 1 + 2 + 3 + 4 so on to n। इसको ऐड कैसे करना है? आई थिंक अगर तुम भूल ना गए हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला तुमने 10th में पढ़ा हुआ है, एंड यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस एज 1, number of terms n, first term as 1, and you can prove this n into n plus 1 by 2 very easily. But don't worry if it is not easy for you, because we are going to cover arithmetic progression from scratch. ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ने वाला, don't worry. तो क्या तुमने अब नोट कर लिया? आगे बढ़े? यस सर कर लिया नोट। सर आपने वही यूज किया ना, n/2 2a + n-1d, आपने d को 1 d को 1 लिया, a को 1 लिया, a को 1 लिया और आ जाता है। डन। चलो वेदांत का हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर लिख। आगे बढ़े? यस सर। ये क्या लिखा हुआ भाई? 7th प्रॉपर्टी को जरा पढ़ के समझ के बताओ क्या लिखा गया है। सर इसको ब्रेक किया गया है। 7th प्रॉपर्टी में कुछ खास नहीं है। 7th प्रॉपर्टी में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप a1, a2, a3 so on to an तक ऐड करना चाहते हैं, so you can break anywhere in between, right? तो हमने देखो पहला सिग्मा m पे एंड किया, where m is a number which is smaller than n, obviously greater than or equal to 1। यहां पर सीक्वेंस को ब्रेक किया तो उसके बाद की टर्म्स को कैसे लिखा गया? देखो ध्यान से, सिग्मा अगेन ai, but this time the lower limit is not 1, lower limit is obviously kept as m plus 1, क्योंकि हमने m पे एंड कर दिया था। तो इट्स लाइक मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, तो मैंने पहला सम किया 1 + 2 + 3, और मैंने सेकेंड पार्ट में 4 और 5 को ऐड कर दिया। तो बहुत ही बेसिक चीज लिखी हुई है, बट नोटेशन देखकर कभी कभी लोग डर जाते हैं, इसलिए सर इसका यूज कहाँ पे आएगा? मैं दिखाता हूं, अभी सिग्मा आने दो, नोट देखेंगे हम इसका यूज। 8th क्या लिखा हुआ है जरा 8 देखो। 8th में क्या लिखा हुआ है? 8th में सिग्मा ai where i is varying from 1 to n की जगह पर राइट हैंड साइड लिखा हुआ है सिग्मा j equals to 1 plus c some constant, और जो लोअर लिमिट है उसको 1 की जगह 1 plus c कर दिया। अपर लिमिट में भी वो देखो वो c कांस्टेंट ऐड किया है n plus c, और ये बन गया तुम्हारा ai की जगह पर aj माइनस। तो बेसिकली लिमिट्स में वो c ऐड किया है, और जो इंडेक्स है aj था ai, उसमें वहां पे माइनस हो गया है। व्हाई डोंट यू ओपन दिस अगेन? सी लोअर लिमिट क्या है? 1 plus c। तो अगर तुम j की वैल्यू 1 plus c रखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी? बैक टू a1, नथिंग चेंज्ड, क्योंकि तुमने लिमिट में c ऐड कर दिया, इंडेक्स में c सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फर्क तो नहीं पड़ा ना। सीक्वेंस में इससे क्या फर्क पड़ेगा? सपोज मैंने c को 5 रखा है, सपोज मैंने c को 5 रख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो a1 है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है वो यहां पर देखो j की वैल्यू क्या स्टार्ट हो रही है? अगर मैंने c को 5 रखा, j = 6 से स्टार्ट, तो वो तुम्हारी फर्स्ट टर्म यहां पर 6th टर्म की तरह हो जाएगी। तो इस तरह के समेशन का यूज हम करेंगे जब किसी सीरीज को अपेंड करना होगा दूसरी सीरीज। मतलब एक सीरीज में मान लो 10 टर्म्स हैं, दूसरे में 20 टर्म्स हैं, उन 10 टर्म्स के बाद उन 20 टर्म्स को वहां पर ऐड करना है, तब यहां पर जिस तरह सिग्मा का यूज हुआ है ये दोबारा आएगा।
8th पॉइंट जो है जब यूज होगा तो तुम्हें समझ में आएगा। ये भी अभी ऑप्शनल है, तो लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है, वो तो साथ साथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेकिन इक्वल भी कैसे हो रहा है? लाइक वो फर्स्ट टर्म के लिए वो पहले ले और प्रीवियस इसमें 10 प्रीवियस 10 टर्म से वो वेदांत। 8 वाला पॉइंट चालू हुआ है ना, 10th टर्म से। वेदांत, अगर तुमने यहाँ पर j की जगह 1 प्लस सी रखा, 1 प्लस सी, तो a j माइनस सी, j की जगह 1 प्लस सी रखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी? a1 ही तो आएगी। अभी j की जगह पर 2 प्लस सी रखो, 3 प्लस सी रखो, 4 प्लस सी रखो, तो यहाँ पर जो c है वो तो कैंसिल होता रहेगा ना, बिकॉज वहां पे j माइनस सी लिखा हुआ है। हाँ, तो फिर डिफरेंस क्या बोल रहे थे आप? डिफरेंस आएगा कुछ सम? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर i इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, i इक्वल्स टू 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, a1 इज द फर्स्ट टर्म, बट यहाँ पर j इक्वल्स टू 1 प्लस c का मतलब, फॉर एग्जांपल c अगर 5 हो गया तो j इक्वल टू 6 से स्टार्ट होगा, यानी वो a1 जो है वो फर्स्ट टर्म नहीं है, a1 इज 6th टर्म। अब समझ में आई बात? हाँ, मतलब वो वहां पर फर्क होगा, ठीक टर्म्स। या नेक्स्ट, तो भाई आप है आज की समरी। मैं सोच रहा हूँ कि एपी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, वी नॉट इन ए हरी। तो हमने क्या क्या पढ़ा भाई आज? हमने पढ़ा कि सीरीज क्या होती है, राइट राइट। टर्म्स यूजुअली जब ऐड हो रही होती हैं तो उसको सीरीज बोलते हैं। सीक्वेंस और सीरीज का तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया। सिग्मा नोटेशन तुमने पढ़ लिया है, सिग्मा नोटेशन, और कैसे तुम किसी सीरीज को समेशन साइन के, समेशन नोटेशन से रिप्रेजेंट करोगे सीरीज के सम को, वो तुमने देख लिया, राइट। नेक्स्ट हमारा पहला, अच्छा ये प्रोग्रेशन क्या है? हमने सीक्वेंस एक वर्ड देखा, सीरीज एक वर्ड देखा, प्रोग्रेशन का मतलब क्या? कोई तो बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेशन? Something that is increasing or something that is being added. इंक्रीज नहीं बोल सकते बेटा, मतलब 3 2 1 0 पे तो ये कांस्टेंट वैल्यू। नहीं, yes sir. इंक्रीजिंग विद द कांस्टेंट कांस्टेंट डिफरेंस मैं एपी नहीं पूछ रहा हूं, मैं एपी नहीं पूछ रहा हूं, अरिथमेटिक को भूल जाओ, मैं पूछ रहा हूं प्रोग्रेशन वर्ड की मीनिंग क्या है? What is the meaning of the word इंक्रीज कर रही है वैल्यू। प्रोग्रेस करना, इट कुड बी इन एनी डायरेक्शन, नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो वैल्यू इंक्रीज कर रही है बोलोगे तो गलत हो जाएगा। Now modulus has to increase. मॉडुलस इंक्रीज कर रहा है, गलत हो जाएगा, कांस्टेंट भी हो सकता है। प्रोग्रेशन मीन्स समथिंग व्हिच प्रोग्रेसेस। व्हाट इज प्रोग्रेस? कहां पे हो रही है भाई? प्रोग्रेस नंबर ऑफ टर्म पे हो रही है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। उस टर्म की वैल्यू क्या है? वो इंक्रीज हो सकती है, वो डिक्रीज हो सकती है, वो फ्लक्चुएट हो सकती है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है यार। तुम्हें उसकी वैल्यू से, उसके आउटपुट से कोई मतलब ही नहीं है। तुम शायद भूल गए कि हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या लिखी है। सीक्वेंस का आउटपुट रेंज कुछ भी हो सकती है, इट इज यूजर डिफाइंड, बट समथिंग व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट इज द इनपुट, इज द डोमेन। सो अ प्रोग्रेशन इज नथिंग बट अ सीक्वेंस और अ सीरीज, इट कंबाइंस बोथ। सीक्वेंस और सीरीज के लिए एक वर्ड प्रोग्रेशन बनाया गया है, एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज ऑब्वियसली समथिंग व्हिच प्रोग्रेसेस, बट नॉट इन द वे यू आर थिंकिंग। ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है, नो, वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो, कांस्टेंट है। उसकी जो टर्म नंबर है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। फोर्थ के बाद हम फिफ्थ पे जाएंगे, फिफ्थ के बाद हम सिक्स पे जाएंगे। हो सकता है सिक्स टर्म की वैल्यू फिफ्थ टर्म से छोटी हो और सेवेंथ टर्म की वैल्यू फिफ्थ टर्म से बड़ी हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। बट हमको ये बताया कि सेवेंथ टर्म सिक्स टर्म के बाद में ही आएगी, वहां पे प्रोग्रेशन। एंड व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड प्रोग्रेस? अरे तुम लोग यार, सर इंग्लिश वर्ड ढूंढना पड़ेगा कि ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, प्रो का उल्टा क्या होता है? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ प्रो? डिग्रेस, सर डिप्रेस। डिप्रेशन देखो 3 प्लस मतलब होता है ना वो मनी का। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक बार ये बताओ मुझे कि प्रो का ऑपोजिट क्या होता है? प्रो सर नूब होता है। मुझे बताओ कि प्रोग्रेस, अगर प्रो का उल्टा कौन है तो प्रोग्रेस का उल्टा क्या है? प्रोग्रेशन।
सर गूगल पे रिग्रेशन दी है। रिग्रेशन इज करेक्ट यार, मतलब मैं तो एक जोक, तुम लोग जोक का भी कबड़ा करते हो। कांग्रेस सर। कांग्रेस कांग्रेस क्या है? अच्छा पॉलिटिकल नहीं था ये, डोंट वरी, है ना, मतलब ऐसा सर मत फिर सोचना से मैं सर कुछ- समझा नहीं। प्रो का प्रो का उल्टा उल्टा कौन होता है? तो प्रोग्रेस का उल्टा कांग्रेस होगा और क्या। अब राहुल गांधी तक की बात मत पहुंचाना, ठीक है, ना बुरा मान जाएगा वो। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम लोग जो है अगले लेक्चर मिलते हैं।